if you could tell us the takeaways of this panel. So we had a very great session today. It was on food trends, and the biggest takeaway was that we have to, all of us should and must focus on the quality of ingredients. Quality is directly proportional to health. Health is wealth. That is what we say, and it is. Since this was a chef's panel, all of us agreed that health is very important and we have to use the best quality ingredients, use responsibly, and because the customer is paying, and the food that the customer eats is directly responsible for the health of that person. So, very important takeaway was be responsible, use good quality ingredients, and as much as possible focus on health. For a small business, what would be the 5 takeaways if they wish to start a business as a restaurant, as a takeaway, or as a cloud, or be an aggregator and get attached to Swiggy and Zomato? Very important points to start for a small business is that one should be first you have to be passionate about your business. You should not just come into the food business just because of the glamour. Food business आसान नहीं है. Food business is not easy. So you should be passionate about food. Anything that you do, number 2, anything that you do has to be the best quality. You have to put your best foot forward. Number 3, be responsible for the customer's health. Be responsible for what you do. Number 4 would be that keep your expenses under control. It is very important. People start. I am in the business for 30 years. I have seen people starting with a great will, but failing just because they cannot control their expenses. So it is very important to be mindful of your expenses, and then har mahine you will have to see what kind of expenses and which heads you are spending on, and then do your business. Be patient is my 5th takeaway. So food business, as I said, is not easy, but it is very good. It is a well-paying business, but you have to be patient. You have to be patient it is not a retailing business. You are producing something and then selling it. So you have to be patient, and then you will get the fruit of a good food business. Sir, अब एक industry question. Your industry, the restaurant industry, which we can categorize under hospitality industry, the industry ने अभी revive कर लिया. अब survival, you have survived, you also have revived. Strategy क्या है? आगे जाके आपको क्या लगता है 2021 कैसा होगा? 2021 में हम हैं. 2021 विल बहुत अच्छा होगा. हम ऑलरेडी जो एक हमेशा इंडस्ट्री में एक वेव आता है, जो अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, तो अप भी आता है, एंड वो अप आना स्टार्ट हो गया है. हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. नाउ हमने सीख लिया है कि कोविड के साथ कैसे जीना है. कोविड वी वर नॉट रेडी. हम इसके लिए रेडी नहीं थे. कोविड के लिए एक सरप्राइज़ के साथ आया था, बट अभी वो सरप्राइज़ नहीं है. अभी हमारे को पता है कि कैसे अवॉइड करना है कोविड को, कैसे उसके साथ में हम अपनी लाइफ बिता सकते हैं और सारा बिजनेस भी कर सकते हैं और नॉर्मली लाइफ जी सकते हैं. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट देयर विल बी अब हमेशा अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा बिजनेस में. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री है इज को रिलेटेड विद आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री. सो अभी ट्रैवल में बहुत चहल पहल हो रहा है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल. सो आपको क्या लगता है ये ठहराव कब तक रहेगा? ट्रेंड अभी क्या चल रहा है? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि
ट्रैवल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, बट ट्रैवल इंडस्ट्री थोड़ा सा जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस अगर कम हो जाएंगे तो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अभी तक कॉशन में है। सो जैसे मैंने कहा कि लोग सीखते जा रहे हैं, जैसे जैसे ज़्यादा लोग कोविड के साथ जीना सीख लेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शंस जैसे ही हट जाते हैं तो इनफैक्ट आई सी देयर विल बी अ रिवेंज ट्रैवल ऑल्सो, कि इतना दिन से अभी जो बंधे हुए थे हम, वो बाहर आएंगे लोग एंड वो ज़्यादा ट्रैवल करना चाहेंगे और ज़्यादा ईट आउट करना चाहेंगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे नई जगहों को। एक लास्ट क्वेश्चन, आपके मेन्यू में आप लोगों ने कुछ चेंज लाए या आप कुछ प्रकार का रिक्वेस्ट अलग हुआ कोविड के टाइम और अभी जो चल रहा है? जैसे आपने कहा हेल्थ फोकस हो गए, मोर न्यूट्रिशन फूड, तो आप लोगों ने मेन्यू में कुछ चेंज लाना आपको ज़रूरी लगा? देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल फूड कंपनी होने की वजह से हम लोग पहले से ही बहुत चीज़ें ऐसी कर रहे थे जो इंडस्ट्री से आगे थी। सो जब कोविड हुआ तो सडनली फोकस आया हाइजीन पर, सडनली फोकस आया हेल्थ पर। सो ये जो हाइजीन और हेल्थ, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल फूड कंपनी पहले से फॉलो कर रहा था। सो उनको ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, हमें भी ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा जो चेंज किया वो सोशल डिस्टेंसिंग पे चेंज किया, रेस्पिरेटरी हाइजीन पे चेंज करना पड़ा। रेस्ट एवरीथिंग वाज हमारे जो मेन्यूज़ थे, मेन्यूज़ में ज़्यादा वैरायटी दी, क्योंकि लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी तो उसमें ज़्यादा वैरायटी फ्रीक्वेंटली चेंज करके मेन्यूज़, कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, तो उसकी वजह से वो मेन्यूज़ में से वो इंग्रेडिएंट्स को निकालना पड़ा एंड देयर वाज थोड़ा फोकस आ गया हेल्थ पर। सो हेल्थ इज़ वेल्थ एज आई सेड, सो वो फोकस आया और वो चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट करी अपने मेन्यूज़ में। लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री जुड़ते हुए नज़र आई और एक फोरम एसोसिएशन बहुत इंडस्ट्रीज़ ने ऐसे क्रिएट किया, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने अभी क्या सोचा है या आप लोगों का कोई फोरम कुछ ऐसा है कि ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को जब हम कुछ नया आफत आता है ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो था। सो उसमें कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी था और वही कोलैबोरेशन किया, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने भी कोलैबोरेशन किया। वी आस्क्ड फॉर हेल्प, गवर्नमेंट से हेल्प मांगा, कुछ हेल्प मिला कुछ नहीं मिला, बट कुछ ज़्यादा हेल्प मिलता तो और ज़्यादा अच्छा होता। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी आपस में तो हम लोग कोलैबोरेट करते ही हैं एंड वही हेल्प करता है जब बिकॉज हम लोग इंडस्ट्री कलीग्स, इंडस्ट्री फेडरेशंस जब साथ में आती हैं और बात करती हैं तो वो बिजनेसेस को रिवाइव करने में, बिजनेसेस को सस्टेन करने में बहुत हेल्प करती हैं, हम गाइडेंस मिलती है उनसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।